तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं Welcome to Pathfinders, where ambition meets its architect. In the pursuit of the IAS, a dream is your compass, but strategy is your survival kit. In a world where millions chase the ultimate treasure, the difference between those who finish and those who lead often comes down to a single factor: the map maker. Today on Pathfinders, we are just talking about success. We are unveiling the blueprint for it. We are joined by a titan of the industry, a man whose career spanned 25 years of shifting the landscape of civil services preparation across the premier institute of India. He doesn't just teach syllabus, he builds statesmen. Please welcome the visionary program director of Ajmal IS Academy, a mentor who has turned decades of experience into a masterclass for the modern aspirants. Mr. Rahul Swaroop, the man, the mentor, the path maker. Success is a journey of grit, and every great journey needs a legendary guide. So welcome to you, sir, to Pathfinders. This is Thank Tanya you. Majumdar, Thank you, and Tanya. here is Rahul Swaroop, sir. After serving 2.5 decades of Indian bureaucracy, the floor is yours, sir. I hope you are doing well and with the best of your health. Yes, thank you, and keeping well these days. Okay, sir. So, sir, yeah. So, shall we start? Yes, we Okay. can. So, very first question goes like, sir, what are the common misconceptions that the IAS aspirants have during their IAS preparation, and how do you address them? First of all, what I have seen, students harbor a notion that students who are from reputed colleges, universities, IITs, IIMs, they only can clear this exam and can enter into civil services, which is exactly not true. So this myth should be broken. Anybody who has a fair idea of general studies and general happenings in the country and basic understanding of all the subjects which are part of syllabus can very well decide to prepare and excel in this particular exam. Greatly answered, sir. Sir, is it really true that civil services have and the syllabus have been anything under the sky? No, this is not correct. In general parlance, it is said that anything under the sky can be asked. If you see the syllabus, in the prelims syllabus, all the topics are mentioned and the main syllabus is well defined. In the mains examination, nothing comes up in the examination which is out of syllabus. In the prelims, what they check with your understanding of the subjects, are you able to do the questions by applying your analytical ability or critical reasoning? That is more important. हमने बहुत बार देखा है बच्चे शुरू करने से पहले ही खत्म कर देते हैं मतलब देयर इज अ वेरी वेरी मिसकंसेप्शन एज यू हैव क्लियर राइट नाउ सर कि उनको लगता है इवन मेनी ऑफ द टीचर्स वी हैव सीन दे से दैट इट इज एनीथिंग अंडर द सन एनीथिंग अंडर द स्काई और बच्चों को क्या लगता है कि इट्स वेरी वास्ट ओशन की तरह है तो मतलब शुरू करने से पहले डिमोटिवेशन आ जाता है बच्चों के बीच में एक्चुअली होता यह है जब हम सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करते हैं तो इस एग्जाम में 10 लाख बच्चे बैठते हैं फॉर्म भरते हैं और उनमें से 5-6 लाख एक्चुअली बैठ ही जाते हैं। अब उनको अगर हमको क्वालिफाई कराना है तो एक बेंचमार्क तो बनाना पड़ता है। उसमें जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चंस उसी सब्जेक्ट से होंगे, उसी कंटेंट से होंगे जो आप पढ़ते आए हैं, पर उसको पूछने का तरीका थोड़ा सा वो ऐसा कर देते हैं जिसमें इफ रियली यू आर अप्लाइंग योर माइंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो दैट इज मोर अबाउट योर एबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चन रादर देन द कंटेंट। जो आपका तरीका है एग्जाम को पेपर को सॉल्व करने का वो ज्यादा मैटर कर जाता है। जहां पर आपकी रीजनिंग एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, अगर वो डेवलप कर लिया आपने देन यू कैन इजीली क्वालिफाई। तो सर with so much free content available both in YouTube, in Telegram and other platforms nowadays, is still an offline coaching center a necessity or has it become a luxury? Yes, it is a very, very wonderful question.
And these days, after COVID, media or YouTube, you can say, is flooded with, It has become a storehouse of yes, knowledge. storehouse of distracting knowledge, I should say. Distracting knowledge. YouTube free है. Anybody with some knowledge, less knowledge or wrong knowledge can enter and prepare his content. प्रॉब्लम ये है. ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी गुड. जब ये शुरू हुई थी, जब ये रिवॉल्यूशन आया था तो बहुत अच्छा था, क्योंकि दूर बैठे हुए बच्चे या जिनके पास वो हालात नहीं है, वो सहूलियत नहीं है, वो उसको नहीं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं तो उसे कर सकते थे. लेकिन वो इतना फ्री है ऑनलाइन कोचिंग का सिस्टम कि उसमें सभी लोग अपना अपना कंटेंट बता रहे हैं. और चूंकि रेगुलेटेड नहीं है तो हमारे जो बच्चे हैं, जो फ्रेश हैं, जिनका टेंडर माइंड है, फ्रिजाइल माइंड है, उनके ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ रहा है वो गलत पड़ रहा है. और किसी भी लर्निंग में उसे अनलर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है. आपने लर्न किया वो अलग बात है, लेकिन गलत सीख लिया तो उसको भूल पाना बहुत मुश्किल है. इसलिए ऑनलाइन कोचिंग इस तरीके से गलत है. दूसरा ये है, जब ऑफलाइन कोचिंग की बात करते हैं, क्लासरूम स्टडी की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर एक फेस टू फेस इंटरेक्शन टीचर से होता है. एक आसपास आपके बच्चे बैठे रहते हैं, वो जो पीयर प्रेशर होता है, जो पीयर एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी होती है, वो अपना काम करती है. दूसरी बात है, आपका चेहरा देख के, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के टीचर अपना बोलने का तरीका बदल देते हैं. ये चीजें बहुत मैटर करती हैं. वो जो एनकोडिंग होती है कंटेंट की, जिसमें आपकी सारी फैकल्टीज जो माइंड की हैं वो काम कर रही हैं, आप सुन रहे हैं, टीचर का चेहरा दिख रहे हैं और प्रोसेसिंग भी करते जा रहे हैं, उससे जो मेमोरी एनकोडिंग होती है वो लॉन्गर लास्टिंग होती है. इसलिए ऑफलाइन इज डेफिनेटली फार बेटर. और इसको अगर मैं एग्जाम्प्लीफाई करना चाहूँ तो पिछले समझ लीजिए 8-10 साल हो गए हैं ऑनलाइन कोचिंग को, लेकिन अभी भी जो सिलेक्शंस हैं वो 99.9% ऑफलाइन कोचिंग से ही होते हैं. ऑनलाइन अच्छा मोड था पर गलत लोगों के हाथ में चला गया और उन्होंने ऑनलाइन का नाम खराब कर दिया. एप्टली आंसर्ड सर. हमने देखा है रिसोर्सेज तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बट कहीं ना कहीं वो आपको भटका देता है. जैसे कि ऑफलाइन सेंटर में देयर इज अ गार्जियन फिगर, देन वो बोथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन दिस डिप्रेशन थिंग इज अ वेरी रियल थिंग सर. सपोज इट्स योर 4th अटेम्प्ट और योर 5th अटेम्प्ट, सो इन दैट केस सर हाउ डू यू कोप अप, एंड आप उनको वैसे ट्रैक में कैसे लाते हो जो ऑलरेडी गिव अप के स्टेज में है? 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं. हाँ सर. और वैकेंसी 900, 950 या 1000 वैकेंसी निकलती हैं, तो ऑब्वियसली सबका तो नहीं हो पाता है. लेकिन 4th, 5th अटेम्प्ट तक जाते जाते कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई छोटी मोटी गलती हो रही होती है. ऐसे में जब वो अगर राइट काइंड ऑफ मेंटोर उनको मिल जाता है, जो उनकी वो छोटी छोटी नुएंसेस को टच करता है, इम्प्रूव कराता है, तो वो जो कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं और सिलेक्शन हो जाता है. और ओबियसली सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर राइट काइंड ऑफ मेंटर आपको मिल जाए देन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. और क्योंकि ये जर्नी लंबी होती है तो इसमें मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. मोटिवेशन आपको एक किताब नहीं दे सकती, आपको एक छोटा सा यूट्यूब का वीडियो नहीं दे सकता. वो सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वही काम करता है, और सेल्फ मोटिवेशन का जो असर है वो लॉन्गर लास्टिंग होता है. तो मेरे ख्याल से सेल्फ मोटिवेशन पे काम करना चाहिए. और सेल्फ मोटिवेशन का सिंपल तरीका है कि अगर डिसिप्लिन के तरीके से पढ़ रहे हो, अपना शेड्यूल बनाया है आपने, उसे मीट कर पा रहे हो, तो आज का शेड्यूल मीट करना मेरे लिए कल का मोटिवेशन है. और कोई नहीं चाहिए आपको. बस सेल्फ मोटिवेशन की रूट्स जितनी डीपर होंगी उतना आपके सक्सेस के चांसेस हर जगह बढ़ जाएंगे. Sir, other than academics, is there any counseling elements in your Ajmal IAS Academy? Obviously, हमारे जो mentors हैं, हमारी टीम है, not only they look after the academic part, they also look after the non-academic part. Students उनसे हर तरीके की प्रॉब्लम्स पूछ लेते हैं कि सर यहाँ पर मैं अटक रहा हूँ, या यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूँ. जो सर आप लोग जो शिक्षा दान कर रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन दैट? टेक्नोलॉजी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कोई भी आयाम जो शिक्षा का है या जिंदगी के किसी पहलू का है वो बिना टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकता. True. सभी लोग होजाई नहीं आ सकते हैं, गुवाहाटी नहीं आ सकते हैं, दिल्ली नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, जहाँ पर हमारी जो ऑफलाइन कोर्स क्लासेस हैं वो सीधे डायरेक्ट टेलीकास्ट होती हैं और बच्चे अपने घर बैठ के उस क्लास को देख सकते हैं जो ऑफलाइन क्लास है. हम स्पेशली क्लास रिकॉर्ड नहीं कराते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं, ऑफलाइन क्लास को ही हम ऑनलाइन बोर्ड में दे देते हैं. तो टेक्नोलॉजी के बिना तो नहीं हो सकता. और हमारे यहाँ भी एक बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस एक पूरा इकोसिस्टम है जो उन बच्चों की इश्यूज को भी देख रहा है, ज़रूरतों को भी देख रहा है जो लोगों को चाहिए. मतलब जो स्टूडेंट रूरल एरिया से दूर है, बाहर है, बैकग्राउंड नहीं से आ तो वो सकते हैं, यस सर, उनके लिए वही रिकॉर्ड एजुकेशन जारी है जो होता है. ऑफलाइन रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव जाती है. लाइव क्लासेस, जी वेरी लाइव नाइस. जाती है.
सो वहाँ से स्टूडेंट उस चीज का, जी एंड जी इज जी देयर फीडबैक एलिमेंट सर? श्योर। वो जो क्लास टेस्ट होते हैं वो उनको मिलते हैं, हमारा एक पोर्टल है उस पे वो रजिस्टर्ड होते हैं, उस पे वो टेस्ट देते हैं, उनका टेस्ट देते ही एक पूरा रिजल्ट एकदम उनको मिल जाता है, बुकलेट्स उनको दी जाती हैं, दे अटेंडेड टू। ओनली डिफरेंस इज दिस कि वो अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बच्चे रूबरू बैठ के सामने पढ़ रहे Wonderful. Now, I'd be a bit hesitating to ask one question, but sir, coaching is often criticized as being a factory. So, how do you balance the commercial side of running an institute with the moral responsibility of guiding your aspirants? हैं। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। और जिस तरीके से इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं आज पूरे भारत में, वहाँ ये ब्लेम कि कोचिंग्स फैक्ट्रीज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब एक फैक्ट प्रोडक्शन होता है और मास प्रोडक्शन होता है, तो वो प्रोडक्शन बाजार में जाता है और बिकता भी है। उसका बिकता है जिसका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बहुत उत्तम होता है, अच्छा होता है, अव्वल होता है। अगर आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन उनकी एग्जामिनेशन की हर रिक्वायरमेंट को आप ठीक से फुलफिल कर रहे हो, क्वालिटी कॉन्शियस हैं, क्वालिटी को दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ जाती है जब आपने 400-500 के बैच बना लिए और फीस लेने के बाद, क्लास होने के बाद बच्चे की टीचर तक, मेंटोर तक पहुँच ही नहीं है, तो फिर तो वो फैक्ट्री ही है। लेकिन अगर आपका एक साइजेबल नंबर का बैच है, साइजेबल स्टूडेंट्स के नंबर का बैच है, उसके साथ आप क्लास के बाद भी काम कर पा रहे हैं, तो फिर वो कमर्शियल एस्पेक्ट को भी मीट कर देता है और डिलीवरी भी हो ही जाती है जिसके लिए कोचिंग खोली जाती है। So there is a saying कि development and destruction are the two sides of a same coin. How do you justify it with regard to the same question only, sir? देखिए, न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल वॉर के लिए करेंगे तो डिस्ट्रॉय करेगी, और उससे पावर भी बना सकते हैं, मेडिसिन भी बना सकते जैसे हैं, कि कैंसर का इलाज भी हो सकता सेम है। चीज अगर मैं कहूँ तो मेडिसिन को अगर आप बीमारी के लिए लो तो एक आशीर्वाद है, अगर नशे के लिए लो तो तो वो आपको बर्बाद कर देगी। तो अगर आप कोचिंग में आकर उसका जो पर्पस है, जिस पर्पस से आए हैं, उस पर्पस के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, तो वो आपको फायदा पहुंचाएगी। वरना आप अपना वक्त भी खराब करेंगे और पैसा तो खराब करेंगे, और आगे के लिए भी आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ टेक दिस पर्टिकुलर थिंग। और मैं ये बता दूं कि बहुत कम बच्चे हैं जिनको ये मौका मिलता है कि वो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करके आगे निकल जाएं। यदि आपको दिमाग में ये आया है, मौका मिल रहा है, तो उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनका मिसयूज नहीं करना चाहिए, उनको एकदम। वेस्टफुल नहीं करार कर देना चाहिए। Aptly answered, sir. Sir, I think audience are curious to know one thing कि अजमल IAS Academy में वो कौन कौन से बच्चे जो हैं वो इस कोचिंग का फायदा ले सकते हैं, फ्रॉम व्हिच क्लासेस आई मीन? अजमल आईएएस एकेडमी में बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये माना जा रहा है कि जो यूपीएससी में बच्चे सिलेक्ट हों वो यंग माइंड के हों, फ्रेश हों, तो कैच देम यंग, ये पॉलिसी पे काम हो रहा है। अजमल आईएएस एकेडमी इसी पे काम कर रही है। तो इसलिए हमने सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को 11th से ही लेना शुरू कर दिया है। तो हमारे यहाँ जो पहला कोर्स चलता है वो HS प्लस IAS इंटीग्रेटेड, वहाँ पर हम 11th-12th के बच्चों को जो बेसिक कैपेसिटी बिल्डिंग है सिविल सर्विसेज के लिए, उस पे काम कराते हैं। उसके बाद हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें अजमल आईएएस एकेडमी बहुत अच्छा कर रही है, दैट इज BA BSc प्लस IAS इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें 3 साल हम बच्चों को उनके BA BSc के कोर्स के साथ IAS क्लासेस भी कराते हैं, इस हिसाब से कि बाय द टाइम उनका ग्रेजुएशन खत्म होगा, उनका तैयारी हो चुकी होगी और वो पूरी तरीके से रेडी हैं एग्जाम को लेने के लिए। इसके साथ साथ हमारे जो और कोर्सेज है उसमें फाउंडेशन बैचेस भी हैं और मेंटरशिप बैचेस भी होते हैं। जैसे आपने पूछा था कि जिन बच्चों का चौथा पांचवा अटेम्प्ट हो गया है उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए हम मेंस क्रैश कोर्स चलाते हैं, मेंटरशिप क्लासेस चलाते हैं, जहाँ पर जो सीनियर्स हैं वो अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, इम्प्रूवमेंट है, वो आके कर लेते हैं। तो यूपीएससी एग्जाम का हर एस्पेक्ट, चाहे वो 11th-12th के बच्चे हैं जो आजकल एस्पिरेंट बनना चाहते हैं उनको भी लेते हैं, BA BSc वाले भी हैं, और हमारे फाउंडेशन बैचेस जो पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं वो तो हमारे यहाँ होते ही हैं, जो अपने BA BSc करने के बाद। ये पूरा जो प्रोग्राम है ये कहीं और तो भारत में मेरे ख्याल से नहीं चलता। सच में सही से वेरी रेयर फैसिलिटी दैट पीपल आर गोइंग टू गेट, ऑलरेडी मेनी आर गेटिंग। बहुत लोग को शायद ये पता नहीं था, बट इवन आई एम मेस्मराइज्ड टू नो दैट सर, कि क्योंकि बहुत लोग का ऐसे होता है जिनको आइडिया भी नहीं होता एग्जाम के बारे में। सो अगर आप 11th बच्चे का माइंड बहुत फ्रेश रहता है, उनको तभी अगर आपको उनको रोड मैप बता रहे हो कि आपको इस डायरेक्शन से जाना है बेटा, और जो बेस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी उम्र में अगर उनका वो फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है तब तो उनका रास्ता एकदम क्लियर है। हमारी कोशिश ये है कि
ज्यादातर ये देखा गया है जो बीए बीएससी बीटेक हम्म करने के बाद सोचते हैं अब क्या करें। हम्म हमारे यहाँ बच्चे पहले से तैयार हैं और जब तक और लोग सोचेंगे कि हम क्या करें तब तक वो एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। So let's start for the most awaited round, the rapid fire round. Are you ready, sir? यस श्योर। Okay, so first question goes like, sir, what is the biggest distraction for our aspirants today? ऑब्वियसली सोशल मीडिया। Social media, yes, aptly said. One book that every aspirant must own. I can correct your question a bit. It should be books. Books, And okay, if sir. we talk of books, NCERT books are must for सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन। NCERTs आपका आधा सिलेबस कवर कर देती हैं। अगर आपने ठीक से पढ़ी हैं तो आपको मेंस का आंसर लिखने लायक भी बना देती हैं। तो NCERT बुक्स तो बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। They are a must. यस यस Sir, pen and paper or digital note taking? अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो भी पेन एंड पेपर, और साइंटिफिक थॉट के हिसाब से बताऊं तो भी पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर से जो नोट्स बनते हैं जिसे हम अपने हाथों से लिखते हैं, एंड मल्टीपल फैकल्टीज काम करती हैं। आपका हाथ है, आपकी आंख है, आपका सुनना है, आपका समझना है, और अपने हाथ से बनाए गए नोट्स उनमें एक कंटेक्स्ट एम्बेडेड होता है। वो आपकी मेमोरी को अच्छा बनाता है, अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बनाता है। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि जो हाथ से नोट्स बनाए जाते हैं उसका कोई भी रिप्लेसमेंट ना है, Cognitive ना development हो में भी पाएगा। help होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है, उससे जो लॉन्ग लास्टिंग एम्बेडिंग होती है आपके थॉट की, अंडरस्टैंडिंग की। इंफॉर्मेशन नहीं है यूपीएससी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है यूपीएससी, और वो तभी हो पाती है जब मैं अपने हाथ से लिखता हूँ। अपने हाथ का लिखा हुआ मुझे जल्दी समझ में आएगा। Very मैं अगर उसे फोटोकॉपी करा लूँ या प्रिंट निकाल लूँ या किसी और से ले लूँ, वो ओब्वियसली पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन वो मेरी एनालिसिस की एक जो डेप्थ होती है उसमें नहीं जा पाएगा। ये हमने बहुत जगह देखा है सर। ये जो कुछ कोचिंग सेंटर में या फिर कहीं पे भी जो स्टूडेंट को जेरोक्स आई मीन हार्ड कॉपी प्रोवाइड किया जाता है, हमने देखा है बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं अपने कॉपी में वहां से उठाना। इवन इफ कल उनका एग्जाम में फिर भी बच्चे वहां से उठा के अपने कॉपी में लिख रहे हैं, दे आर सेइंग यहाँ से सीखना आसान है। हाँ, तो मैंने आपको बताया हम यहाँ पर डिस्करेज करते हैं अपनी अजमल आईएएस एकेडमी में कि पीडीएफ बेस्ड कोचिंग क्लासेस ना हो। जहाँ बहुत ज़रूरी है, जो एडिशनल कंटेंट है वो आप दे दीजिए, बल्कि कोशिश करिए कि बच्चों के साथ डिस्कशन हो क्लास में और बोर्ड पर लिख के पढ़ाएं। क्योंकि पीडीएफ एक ऐसा कंटेंट है जो वो नहीं हो सकता उससे अंडरस्टैंडिंग जो अदरवाइज पेन एंड पेपर से हो सकती है। तो 100% श्योर कि पेन एंड पेपर का कोई रिप्लेसमेंट ना है, ना हो पाएगा। प्लीज डिस्क्राइब यूपीएससी जर्नी इन एग्जैक्टली 3 वर्ड्स। इस प्रश्न का आंसर दो तरीके से दूंगा, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड द रियल पर्पस इज प्रिपरेशन। एंड सेकंड इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन। ये 3 शब्द अगर कोई समझ लेगा तो ये कंपटीशन तो छोड़ दीजिए, जिंदगी में कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जहां एक एवरेज व्यक्ति भी नहीं पहुंच सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। So, sir, describe the importance of answer writing in examination with the help of an analogy. राइट, मैं आपको बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, और ये जो मैसेज है वो बहुत सही तरीके से बच्चे समझ लेंगे। ये तो हम जानते हैं कि इस एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज मेंस स्टेज है, जहाँ पर हमारे जो सब्जेक्टिव आंसर्स हैं उस पर हमको नंबर मिलते हैं, और सिलेक्शन की वजह वही नंबर बनते हैं। ऐसा समझिए कि यूपीएससी के क्वेश्चंस एक प्रॉब्लम होता है, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वही क्वेश्चंस होते हैं, और इनफैक्ट यही होता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये काम है किसका, जो एस्पिरेंट है उसको वो एग्जामिनेशन पेपर में मिलता है। उसको जो चेक करने वाले हैं वो समझ लीजिए एक जज साहब है। क्वेश्चन एक मुकदमा है, एक लिटिगेशन का केस है, और जो हमारे एस्पिरेंट है वो एक एडवोकेट है, अटॉर्नी है। अब कौन सा अटॉर्नी, कौन सा वकील मुकदमा जीतेगा, जिसके दलील सही होगी, जिसके एविडेंसेस बिल्कुल सॉलिड होंगे। और जज साहब अगर देखते हैं एविडेंसेस बिल्कुल सही पेश किए हैं, वो कहेंगे ये बिल्कुल सही है, और वो वकील मुकदमा जीत जाएगा। इसलिए जब आप आंसर लिखते हैं, आपने जो भी आर्ग्यूमेंट दिया है, अगर उस आर्ग्यूमेंट को आप सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी, विद द हेल्प ऑफ सम डेटा, विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट ऑफ ए कमेटी, तो इसका मतलब आंसर में आपने दलील अच्छी दे दी है। अगर ये 3-4 चीजें मिल जाएंगी, आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन हो जाएगा, जज साहब खुश हो जाएंगे, आपको 10 में से 6.5 नंबर दे देंगे, आपका रैंक पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स वीक होंगे तो आपको 10 में से 4 ही मिलते रहेंगे, और आप सिलेक्शन के आसपास मंडराते रहेंगे। तो यही समझिए कि मुझे आर्ग्यूमेंट इतना अच्छा पेश करना है, इतना अच्छा आंसर में इतने अच्छे सपोर्ट सिस्टम लगाने हैं, एविडेंसेस, कि वो मुकदमा में जीत जाऊं। Very right, sir. Very right. So, what's the one thing you really wish that every aspirant should develop during their preparation? What's the one skill?
Not one skill, three skills are there. All the three are very important. Read, write, सही पढ़ो. Write, सही लिखो. And revise, write, सही रिवाइज करो. ये जर्नी है. अगर ये हो जाएगा तो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. How many hours a day an aspirant should read, sir? ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा आता रहता है. जो नए बच्चे हैं वो इसको लेके घबराते हैं कि 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, 20 घंटे पढ़ना पड़ता है. ऐसा कुछ नहीं है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं. नो टू पर्सन्स आर अलाइक. सबकी अपनी एबिलिटी होती है. लेकिन अगर आप 5-6 घंटे की पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं, जब मैं पढ़ाई की बात करता हूँ तो इट डज नॉट मीन दैट आई एम सिटिंग ऑन द टेबल एंड चेयर विद माई बुक्स ओपन एंड डूइंग नथिंग एंड आई एम सिटिंग फॉर मोर देन 12 आवर्स. दैट इज वेस्टफुल. बट अगर आपकी बिल्कुल डीपर लर्निंग है तो 6-7 घंटे की पढ़ाई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो आपके लिए ज़रूरी है. तो कोई भी ऐसा मिथ नहीं है कि 12 घंटे पढ़ना है तो हो जाएगा और 6 घंटे पढ़ने से नहीं होगा. इट डिपेंड्स अपॉन योर साधना रहना चाहिए. साधना है. मैंने आपको बोला डिसिप्लिन है, उसको ही करना पड़ेगा. जनरली मैं कहता हूँ कि चूज योर गाइड्स वाइजली एंड वंस चोजन देन होल्ड देम टाइटली. Wow. Yes, sir. Aptly said जी. once again. Okay, so let's proceed to our third round. So you need to answer me either true or false or true or myth. Right, Okay, right. so here we go. You need to be an academic topper or an IIT IIM grade to clear the IAS exam. इट्स अ मिथ. Would you elaborate it, sir? अगर रिजल्ट को देख लें, हम कई सालों के रिजल्ट को देख लें, तो ऐसा कोई भी डेटा ये नहीं कहता है कि जो IIT से IIM से बच्चे आए हैं उनका सिलेक्शन होता है. आपको एग्जाम्पल देता हूँ. लास्ट ईयर ही एक बिटिया का सिलेक्शन हुआ है एंड हर फादर ड्राइव्स एन ऑटो रिक्शा इन महाराष्ट्र पूना. एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, उसके फादर शेफर्ड है. एक मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ लिए हैं UPSC एग्ज़ाम के, और मुझे ऐसे बहुत बच्चे मिले हैं जिनके फादर एक रोड साइड वेंडर है, या एक स्टूडेंट थे उसकी मदर शी वाज डोमेस्टिक वर्कर. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें ये कहा जा सके कि ये डोमेन किसी खास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का है या खास शहर का है या खास क्लास के लोगों का है. ये It's बिल्कुल your तपस्या. कास्टलेस, क्लासलेस और रीजनलेस, बिल्कुल एकदम बिल्कुल न्यूट्रल एंड फेयर एग्जाम है. तो इसलिए ये मिथ है कि हम IIT IIMs में पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हमारा हो जाएगा. और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स IITians रहे हैं एंड आई हैव सीन कि जो सिंपल BA करके बच्चे आए हैं दे गॉट सिलेक्टेड, और IITs वाले हुए सिलेक्शन लेकिन बाद में हुआ, उनका पहले हो गया. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि IITs वालों का नहीं होता है, ये अलग ही चीज़ है, इसमें ये चीज़ें मैटर नहीं करती. Okay, sir. The second question is, sir, yes or no में बोलेगा. Is it possible to clear the exam without reading a newspaper for 3 hours a day? यस, It's possible. यस. 3 घंटे नहीं पढ़ना है, पढ़ना ज़रूर है, न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूर है, लेकिन 3 घंटे नहीं पढ़ना है. सही मायनों में अगर हम ये बात करें, जो हमारी प्रिपरेशन का तरीका है, जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, उसका जो सोर्स है वो न्यूज़पेपर ही है. लेकिन 3 घंटे पढ़ना है रोज़, इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन पढ़ना ज़रूर है. शुरुआत में लगता है जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं कि हमको 3 घंटे देने पड़ रहे हैं. जहाँ हल्की सी मेच्योरिटी आती है प्रिपरेशन में, वो आपका 45 मिनट्स 40 मिनट्स में न्यूज़पेपर में जितना ज़रूरी है वो आप ग्रैस्प कर लेते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है. Okay, sir. So, true or myth में बोलिएगा. The interview board tries to trick you with their question. It's true, but not all questions are, you can say, trap. बट वो क्योंकि जो इंटरव्यू होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे कहते हैं, वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है. वहाँ पे आपका वो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग देखते हैं, आपकी अवेयरनेस देखते हैं, आप में कितनी ऑब्जेक्टिविटी है, कितनी प्रोबिलिटी है, वो देखते हैं. तो जब वो ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं तो उनका मतलब ये है कि आपने उसको कैसे वहाँ पर एनालाइज किया और आंसर दिया. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो उसे ट्रैप भी कह सकते हैं, बट वो आपका जो एनालिटिकल माइंड है उसको वहाँ पर चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ तक जो हमको बताया गया है कि आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर आपने जो भी दावा किया है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, उसको चेक करते हैं कि कहाँ तक आप वो है. Rather than a trick, it's a test. Yes, yes, yes. So, should an aspirant have a plan B from the day one itself? In the initial phase of this discussion, I told you more than 10 lakh people appear and around 900 get selected. So practically put, everybody should have a plan B, but plan B should in no way affect the performance of plan A. Plan B होना चाहिए, but not at the cost of plan A. True. Plan B practically होना चाहिए. Myth or fact?
writing speed is more important than the actual quality of the content in the examination, especially mains? It is a myth. Having good writing speed will not do anything unless you have a quality content. कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके अगर कंटेंट की क्वालिटी सही है तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्पीड सही है, आपने 20 क्वेश्चंस मेंस एग्जाम में कर दिए जो कि आपको 4 घंटे में करना पड़ता है, एक क्वेश्चन में लगभग 7 मिनट का वक्त मिलता है, उसमें आपको एक बहुत अच्छा आंसर लिखना है. अगर आप उसे लिखा है फटाफट और आंसर में आपकी क्वालिटी नहीं है तो वो आंसर यूजलेस है. इसलिए जो क्वालिटी इनकलकेशन है आंसर में वो बहुत ज़रूरी है. राइटिंग स्पीड भी चाहिए बट क्वालिटी इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन राइटिंग स्पीड. Sir, could you think of a movie or a show that or a book that has inspired you very much? Long back, I came across a book called The Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy, I think. ये बहुत अच्छी किताब है और बच्चों को मैं बताता हूँ. सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है, माइंड की 3 लेयर्स होती हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस. सबकॉन्शियस वो हिस्सा है माइंड का जिसे मैं तो जानता हूँ लेकिन दुनिया नहीं जानती है मेरे बारे में, और वो फर्टाइल ग्राउंड है. वहां पर जिस चीज की मैं पैदावार करना चाहता हूँ वही कॉन्शियस में निकल कर आएगा. अगर वहां पर मैंने जीत को बोया है तो विक्ट्री आएगी, अगर वहां मैंने हार को बोया है तो हार आएगी. इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को जो डायरेक्शन देंगे आप वही आपके कॉन्शियस में दिखने वाला है, वही आप दिखेंगे. इसलिए इस किताब को पढ़ें. बहुत पतली सी किताब है, सस्ती सी किताब है. उसको मेरे ख्याल से उसे बच्चे पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा वो उसे बहुत हेल्प करेगी. Last but not the least, can a person with average IQ but extreme discipline beat a genius? यही सही फार्मूला है. जितने लोग सिलेक्ट होते हैं आईक्यू उनका एवरेज, मैं कह रहा हूँ ये नहीं कह रहा एवरेज ही होता है, बट ऐसे बहुत हैं जिनका एवरेज आईक्यू है बट उन्होंने डिसिप्लिन को बहुत अच्छा मेंटेन किया है एंड दे कुड गेट थ्रू. और जो आईक्यू जिनका बहुत हाई है, जो हॉपर्स हैं, फास्ट हैं, जल्दी करना चाहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है. लेकिन जिनका एवरेज आईक्यू है और उसके साथ उन्होंने उसमें मेहनत बहुत सही तरीके से की है, दे हैड डन फेयरली वेल. Like hard work can beat talent when talent doesn't work hard. Yes. Sir, what would be your one last piece of advice to those who are still trembling in a room and thinking of moving ahead but still कहीं ना कहीं कुछ एक दबाव है? What would be your one piece of advice to those aspirants? Dare to prepare. Dare to prepare. That was indeed a lovely and nice conversation. So, sir, it's been a tremendous experience sharing the chair with you. Would love to have you once again in Pathfinders, the man, the myth, the legend. Thank you, Tanya. Thanks a lot. Thank you so much, sir. कहीं दिल से धड़कने पागल, सुन लो क्या बोले सांसों की हलचल, बांसुरी होठों से जो कहे तुम लबों से बोलो ना, तितलियां जो फूलों से कहे तुम नजर से बोलो ना, हौले से